So student, next question is question number 31, and the question is, if tan theta is equal to 20 upon 21, show that, find the value क्या करनी है हमें, show that 1 minus sin theta plus cos theta plus 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 3 upon 7। जो हमें अपने RHS की वैल्यू क्या है इन दिस क्वेश्चन, क्या हमें पुट करनी, क्या फाइंड आउट प्रूव करनी है, 3 upon 7 जो है वो हमें अपनी वैल्यू जो है वो प्रूव कर देनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली नाउ वी हैव tan theta is equal to 20 upon 21. So we know that tan theta is equal to perpendicular upon base. So the perpendicular side of the triangle is 20 and the base of the triangle is 21. Okay students. So this is the base side and this is the perpendicular side of the triangle. Okay students. So firstly we draw a diagram. The diagram we can draw as like our previous video. Okay, and the base is 21 and the perpendicular is equal to 20. Okay student. So firstly firstly we have to find out the value of AC, because AC is the hypotenuse of the triangle. Okay students. So the hypotenuse, perpendicular side and base. Okay, the AC hypotenuse find out by the Pythagoras theorem. So the Pythagoras theorem is equal to AC यानी hypotenuse square is equal to perpendicular side square and plus base square. AC hypotenuse is equal to AB square. AB means 20 square and the base is 21 square is equal to 20 is equal to 400 plus 400 41 square root 841, and the 841 is the square root value of 29. So the third side means hypotenuse of the triangle is 29. Okay students, and in the LHS value of the question, firstly find the sin theta, because we have to put the value of sin theta, क्योंकि हमें क्या करना होगा, sin theta की वैल्यू हमें रखनी होगी, and the second is the cos theta की भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos theta upon sin theta. So students, we know that the what is sin theta? Sin theta value is in this diagram is perpendicular upon hypotenuse, and the cos is equal to base upon hypotenuse. ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और द कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इन वैल्यूओं को पुट कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 20 and the hypotenuse is equal to 29. So this is the value of sin theta. Okay students, and the next is base is 21 and upon the hypotenuse is equal to 29. So this is value of the cos theta. Okay students, देखिए हमें सबसे पहले अपनी जो है sin थीटा cos थीटा की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हमें अपने क्वेश्चंस में करना होता है, और फिर हम अपने LHS वैल्यू के अंदर जो है इस वैल्यू को रख देंगे एंड सॉल्व करेंगे और हमारा RHS की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारी LHS की वैल्यू क्या है, LHS 1 देखिए माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29, फिर क्या है देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस की वैल्यू रख दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 29। ओके स्टूडेंट्स, एंड द डिनोमिनेटर इज, फिर डिनोमिनेटर में क्या है आपको 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन 29 एंड प्लस cos थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी सॉल्व, टेक एलसीएम, LCM is 29. Okay, the 29 minus 20 plus k 21 upon denominator is LCM 29 plus 20 plus k 21। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर प्लस था तो इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आ गया। तो स्टूडेंट अगर हम देखो इन दोनों को सॉल्व करें, 29 एंड 21 इक्वल टू कितना हो गया 50, 50 माइनस 20, देखिए 29 से 29 जो है इसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम पे ऊपर क्या रह गया देखिए 50 माइनस 20, और यहां से देखिए ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 अपॉन 70,
0 से 0 कैंसिल एंड वी गेट आंसर 3/7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है 3/7। और देखिए हमें RHS में भी क्या प्रूव करना है 3/7। सो हेंस वी कैन राइट हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमें जो LHS जो था LHS से हमें प्रूव क्या करना था अपना RHS 3/7। और जो हमने अपना क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है हमें फाइनली अपना आंसर कितना मिला है 3/7। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो एकदम सही सॉल्व हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट इससे आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है हमें? द क्वेश्चन इज गिवन इफ cosec A is equal to 2 find the value of 1/10A plus sin A upon 1 plus cos A। So students we know that cosec A is equal to 2, so sin A is equal to क्या हो जाएगा 1/2 because we know that the cosec value and sin A value is both of the reciprocal of each other। क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि sec A बराबर जब हमें 2 दिया हुआ है तो sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट देखिए हमें अपने sin A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने sin A की वैल्यू हमने निकाल ली है क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर उसे वो पुट करना है। अब क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, हमने राइट ट्राइंगल, और उससे हमें क्या निकालनी है cos की और tan की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखिए एक जैसा कि हम करते हैं, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ओके ABC। cosec बराबर हमें दिया हुआ है, देखिए sin बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, sin A चाहिए हमें, cos A चाहिए हमें क्वेश्चन के लिए, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें करनी है tan की वैल्यू फाइंड आउट। tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके स्टूडेंट्स, tan इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और sin A इक्वल टू क्या होता है, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जो cosec A बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें देखिए हमें क्या दिया है, sin इक्वल टू 1/2 है, तो परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारी 1 और हाइपोटेनस क्या है 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस। अगर हम बेस को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा बेस क्या आ जाएगा, देखिए बेस हो जाएगा हमारा AC, यानी बेस, मैं सीधा बेस बोल के ही इसे डिनोट करता हूं, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 - 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सो द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हमें जो है अपने ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर इनकी जो वैल्यू है उन्हें पुट करते हैं। देखिए sin इक्वल टू 1/2 था, हमने प्लेस हमें किया हुआ था। cos इक्वल टू क्या है, बेस, बेस क्या है हमारा स्क्वायर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2। तो देखिए cos की वैल्यू भी हमने निकाल ली। बात आती है tan A। tan A इक्वल टू क्या है, tan A में हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है cot A। हम नोट कर लेते हैं tan A, वी नो दैट tan A इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1/cot A, या हम लिख सकते हैं 1/tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा cot A। तो हम इसकी जगह पर प्लेस क्या कर देंगे, cot A इसमें नोट कर देंगे। तो हम नोट करते हैं हमारा जो नया जो क्वेश्चन बन गया इसका क्या हो गया, cot A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A। ओके स्टूडेंट्स, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो cot A बराबर क्या हो जाएगा, जब tan की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो यानी कि स्क्वायर रूट 3 इसकी वैल्यू हो गई। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस sin A इक्वल टू क्या है 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A की वैल्यू क्या है, cos A इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3/2। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेके। तो यहां से हम देखते हैं, हम जब तक इसे ऐसे ही सॉल्व करते चलते हैं 1/2, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 1 हमने इसका डिनोमिनेटर मान लिया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस के क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो हमें नया जो मिल गया प्लस क्या मिल गया 2 प्लस के स्क्वायर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 3 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3।
अंडर रूट 3 की इसमें मल्टीप्लाई करी, देखो 2 की अंडर रूट 3 में हुई 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में हुई क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया 3। और देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई क्या हो गया 1, ध्यान दीजिए 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अपॉन क्या मिल गया हमें 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इक्वल टू ये क्या हो गया 2 प्लस के अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट देखिए दोनों ही प्लस के हैं हमारे, अंडर रूट 3 भी और 2 भी, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो हम आगे पीछे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे नोट कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, आप जिसे अच्छे से समझ सकें, 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं हम आगे पीछे नोट कर सकते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, तो स्टूडेंट्स 2 प्लस अंडर रूट 3 से 2 प्लस अंडर रूट 3 रह गया और आंसर क्या रह गया हमारा 2। सो द आंसर क्या हमारा निकल गया है स्टूडेंट्स, आंसर हमारा बना है 2। ओके, सो द 2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32। सो द LHS ये जो हमें वैल्यू दी है 1/10 थीटा प्लस साइन ए प्लस कॉस ए जो है, इसका आंसर क्या बन गया हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है हमारा 2। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 और 34 जो हैं बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, मैं फिर भी आपको दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखा देता हूं, दोनों ही क्वेश्चनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट देखिए ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है ऑफ द राइट ट्रायंगल, शो दैट सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो cos A जो है वो cos B के इक्वल है और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखिए हमने दो डायग्राम बना लिए हैं। सबसे पहले जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे थे, देखिए हमें क्या करना है cos A इक्वल टू cos B। तो एक जो है हमने राइट ट्रायंगल जो है वो एंगल बी के अकॉर्डिंग बना लिया है और एक हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग बना लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना, देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या रखा है, एंगल सी जो है ये क्या है हमारा राइट ट्रायंगल है, क्योंकि तभी तो हमारे ये दोनों रिमेनिंग एंगल जो है वो एक्यूट एंगल बनेंगे। तो अब यहां से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, cos A की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, cos A और cos B की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए cos A इक्वल टू क्या होता है, cos बराबर क्या होता है हमारा, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट हम A वाले अपने डायग्राम पे चलते हैं, हम A वाला हमारा डायग्राम ये है, इसका बेस क्या है AC, तो हम यहां से चलते हैं क्या है हमारा AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट जो है cos A की वैल्यू हमने आगे, क्योंकि हमें एंगल में ही गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब B वाले डायग्राम पे चलते हैं, B वाले डायग्राम पर बेस क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो दोनों में कॉमन रहेगी AB। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, AC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें BC अपॉन AB। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए AB से AB क्या है हमारा कैंसिल हो गया और हमें आ गया AC इक्वल टू BC। तो ध्यान दीजिए AC जो है वो किसके, BC के इक्वल है। हम अपने दूसरे डायग्राम में देख लो तो AC इक्वल क्या है BC के। अब यहां से देखिए जो हमारी अपोजिट एंगल जो है, BC हमारी यहां भी है, BC हमारी यहां भी है, यानी दोनों कंडीशन में जो है ये हमारे क्या है, दोनों ये इक्वल हैं। तब स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, जब अपोजिट एंगल में, देखिए अपोजिट एंगल की हम बात कर रहे थे, एक एंगल हमारा A था एक B था, डायग्राम हमने अपना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही बनाया। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखिए जब अपोजिट साइड का जब इक्वल होती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा रूल्स होता है कि अपोजिट साइड का जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो हमारा एंगल A इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, एंगल B। सो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B जो है वो हमारा प्रूव हो गया है।
तो स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमने प्रूव कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 भी सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल जो है हमें दो दिए गए हैं, एंगल ए और एंगल पी आर द एक्यूट एंगल सच दैट द tan A इक्वल टू tan P देन शो दैट। तो स्टूडेंट यहां से देखिए tan बराबर क्या होता है हमारा, tan इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। तो यहां से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपना, बिल्कुल इसी की तरह। हमने इसे नाम दे दिया ए, पी और सी, और एक दूसरा डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया, इसका नाम क्या हो गया, पी और ए, यानी ए सी पी। और जो है हमारे दो ये हमारे डायग्राम जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरह हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहां से जो हमें क्या गिवन है, अब हमें यहां से गिवन है कि अगर tan A इक्वल टू tan P हो तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो हम इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम tan A के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो A के अकॉर्डिंग जो हमारा बनेगा tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PC अपॉन AC। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल गया, PC अपॉन AC। अब हम प्रूव करते हैं अपने P के अकॉर्डिंग, tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन PC। देखो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हमारा हो जाएगा tan AC इक्वल टू PC, क्योंकि देखिए हमारा परपेंडिकुलर साइड क्या है, AC अपॉन बेस क्या है इस डायग्राम के लिए, PC। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है tan A इक्वल टू tan P। अब इन दोनों वैल्यू को हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन्हें इक्वल रख देते हैं। PC अपॉन AC, tan A की वैल्यू इक्वल टू tan P की वैल्यू, AC अपॉन PC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, PC की मल्टीप्लाई PC में होगी तो क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर इक्वल टू AC की मल्टीप्लाई AC में होगी, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। अब देखिए यहां से स्क्वायर कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया है, PC इक्वल टू AC। तो यहां से हमें पता चल गया है कि जो PC जो हमारी साइड है, PC जो है वो AC के इक्वल है। अब स्टूडेंट फिर से वही चीज होगी हमारी जो हमने अपने इस क्वेश्चन के अंदर करी थी कि अपोजिट एंगल की जो साइड होती हैं, अगर हमारी अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड का एंगल भी अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पर एंगल, इनके अपोजिट एंगल क्या है, देखो साइड तो दोनों इक्वल आ गई हैं, इक्वल अपोजिट साइड अगर इक्वल होती हैं तो क्या हो जाता है, इनके एंगल भी जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 भी सॉल्व हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब हमारा नेक्स्ट जो है 35 के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, इन ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल है ABC। यहां पर क्या दिया हुआ है कि एंगल A जो है ये हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल A ये हो गया B और ये हो गया C। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें tan C इक्वल टू क्या दी हुई है हमें वैल्यू, √3। अब फाइंड द वैल्यू क्या हमें करनी है, फाइंड द वैल्यू sin B cos B sin C। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना डायग्राम, क्योंकि यहां देखिए आप एंगल जो है वो दो चेंज हो रहे हैं, एक C है और एक B है, एक B है और एक C है। तो हमें ये डायग्राम दो तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक एंगल C के अकॉर्डिंग और एक B के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी हम अपने प्रीवियस क्वेश्चनों के अंदर करते आए हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हमारा एक डायग्राम हो गया। अब हम एक अपना दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल A। देखो कॉमन क्या रहेगा, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल A जो है वो राइट एंगल है, तो ये तो यही रहेगा। अब हमने क्या करा, C ऊपर पहुंचा दिया और एक डायग्राम हमने B के अकॉर्डिंग बना लिया। तो स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू जो गिवन है क्या है, tan C इक्वल टू √3। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट यहां से C के अकॉर्डिंग जो दी हुई है ये वैल्यू √3 अपॉन 1 हो गई। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, C के अकॉर्डिंग पे जाएंगे, परपेंडिकुलर साइड क्या है, √3 और इसका बेस क्या है, 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां से सबसे पहले हमें इसकी थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड क्या है हमारी, हाइपोटेनिस। तो BC हम निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाना है हमारा, AC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम देखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा √4 और 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा हाइपोटेनिस है वो कितना आ गया 2 दोनों में ही, क्योंकि हाइपोटेनिस तो दोनों का हमारा सेम ही रहेगा हर कंडीशन के अंदर। अब यहां से देखिए बी के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो बन जाएगा बेस, और जो बेस है वो क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन बी के अकॉर्डिंग साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एंगल सी के अकॉर्डिंग कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन बी कॉस बी, क्योंकि ये बी के अकॉर्डिंग निकलेंगे, और साइन सी और कॉस सी। ओके स्टूडेंट्स, साइन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो स्टूडेंट्स हम इसमें बी वाले डायग्राम के अंदर बी वाले डायग्राम पर चलते हैं। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी इक्वल टू 1/2, और कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी √3/2। क्या हो गया √3/2। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी साइन बी और कॉस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब यहां से चलते हैं हम अपने डायग्राम जो हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग बनाया है। साइन सी इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि परपेंडिकुलर साइड क्या है √3/2 हो जाएगी, √3/2, और कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी बेस 1/2 यानी 1/2। तो स्टूडेंट देखिए हमें अपनी चारों जो वैल्यू हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूओं को प्लेस कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन बी कॉस सी प्लस के कॉस बी साइन सी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कॉस बी की वैल्यू हम यहां से प्लेस कर रहे हैं 1/2 इंटू कॉस साइन बी की वैल्यू हमने रख दी है यहां से, और कॉस सी की वैल्यू भी हमने रख दी है 1/2। कॉस बी की वैल्यू है हमारी स्टूडेंट्स √3/2, और साइन सी की भी वैल्यू क्या है √3/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल यहां पर कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करनी है। हम जानते हैं 1 × 1 = 1 एंड 2 × 2 = 4, प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड 2 × 2 = 4। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया 4, और ऊपर से हो गया 1 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 1 + 3 = 4, तो 4/4 = 1। सो स्टूडेंट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 35 = 1, यानी कि हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, और अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब तक आप अपनी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या होता है प्रैक्टिस के लिए हमें कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए हम आरडी शर्मा को हमने सॉल्व किया, जिससे कि हमारी जो बेसिक क्वेश्चंस की है वो हमारी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।